Hello everyone, I am Surabhi. Welcome to my channel. In today's video, I'm going to share all the card games we have, not the board games, card games. So मैंने एक पहले वीडियो बनाया था about the favorite games of my 5-year-old, 6-year-old. बट फिर कोविड हो गया और कोविड में हमने इतनी सारी गेम्स ऑर्डर करी, इतना ज़्यादा खेला है कि अब मेरा स्टैक बहुत ज़्यादा हो गया है. सो आई वॉन्ट just an exclusive video only for the card games. So this is the drawer in which I store all our card games and which is kept over my bookshelf because my two girls also play with each other. There are some games which I play only with my elder one and some games I play only with my little one क्योंकि you know एज वाइज और चॉइस वाइज डिफरेंस हैं. तो आई शो यू ईच गेम कौन कैसे खेलते हैं और कोई सीक्वेंस नहीं है. कुछ गेम्स थ्रिफ्ट स्टोर से हैं बिकॉज कोविड से पहले मैं थ्रिफ्ट स्टोर जाती थी तो वहाँ से मिलती थी. कोविड में सब बंद हो गया तो मैक्सिमम गेम्स आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम अली एक्सप्रेस. सो अली एक्सप्रेस में भी मतलब इफ़ यू सी अ गेम लाइक दिस दे लुक चाइनीज़ लेकिन इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में होती हैं और पिक्चर बेस्ड होती है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती. बट बिफोर आई बाय ईच गेम आई go to YouTube, understand how the game is played, and if I think my girls will be interested or I'll be interested or it will be aid in learning or some way, it should cater to the interest of my kid, right? So that's how I order. So I'll explain each game and how we play and what it is about. So this game, it looks Chinese but it's called Rat a Tat Tat. So if you want to go on YouTube, you say Rat a Tat Tat. It's a very famous game. So this has these cards. So this is helped in thinking and memory capacity. Okay, so that is the basic goal of this game, and again number recognition is required if a child want to play this game, and it's a very simple but it's a very बहुत सोचने वाली गेम है. याद रखनी पड़ती हैं चीज़ें और स्ट्रैटेजी लगती है इसमें और हम सब ये सब फैमिली खेलते हैं. इट कैन बी प्लेड मिनिमम 2 players बट 2 players में मज़ा नहीं आता. सो आइदर आई प्ले विद बोथ द किड्स और वी 4 play together. इट्स अ वेरी गुड गेम इन दैट वे. तो कोई आई मीन यू कैन गो एंड सी द इंस्ट्रक्शंस इन यूट्यूब बट अदरवाइज आई जस्ट शो यू. इसमें डिफरेंट कार्ड्स हैं. दिस वन इज और डिफरेंट कार्ड्स के नंबर्स हैं. ओके, और कुछ ये स्पेशल कार्ड्स होते हैं बट नंबर्स हैं. सो बेसिकली हर एक को 4 cards मिलेंगे but you can't see what cards you have got, and then there are choices and you get a card like draw to or sneak, and then you open one card, then you put it, you remember which card you have, and there's a whole process. In the end, the one who has the minimum number, you have to add all the numbers, and the one who has the least number of cards, least number of the sum of the cards will be the winner. But because it is like आप देख नहीं सकते, अगर कोई आपने एक कार्ड खोला है तो आपको याद रखना पड़ेगा, and then you can swap the cards, and again I will not be able to explain each game, so go to YouTube and see how it plays. But it's very good for strategy, for memory, and as a family it's a very fun game, and it's a very short game. The best part is a very short game. I can play in 15 minutes and 20 minutes and it gets done. So yeah, I love this game. We all love this game. So जो मेरी स्पेशल छोटी वाली है, I mean like she knows numbers but she doesn't have a patience to sit for a very long time. So she loves Rat-a-Tat game. So this is one game. This we ordered during COVID. So उसके बाद half the games you would have already seen in, but to share, ये हमारी कार्ड गेम्स हैं जो मैंने रखी हैं but we don't play much. We taught girls bluff, but again झूठ बोलना इतना आता नहीं है उनको, and it's always me or my husband wins. Sometimes they'll just for fun we play, but yeah, I have the cards but my girls are not ready for those. रम्मी मुझे ज़्यादा भी नहीं आती, 2-3 ही आती हैं, but they could not play those games, so we left it apart. But yeah, I have some card games in this drawer. Then I have this one, headband game. This is before COVID and it is again जैसे कहते हैं ना I Spy और Guess Who kind of game, वैसा होता है. तो it's like I will put a card, so you have bands around or you can just hold a card because हमने band से खेलने की कोशिश करी, it becomes very uncomfortable. तो जैसे I pick a card, I don't know which card it is, so other person will give me clues कि it is a cloth, it is this, and then I have to guess what is there in the picture. But again I felt या तो बहुत सारे लोगों तो मज़ा आता है because there be some lot of brains working around, और ये होता है कि और I limit the cards. I put 10 cards and I give my kids options कि मैं सिर्फ इन 10 cards से पूछूंगी because my kids are still little. ये हो गया कि मैमल है, रेप्टाइल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, बट उतनी गेसिंग पावर, उतनी सोचने की पावर एक बच्चे में नहीं होती. तो यूजुअली आई प्ले एंड विद माई बोथ द किड्स एंड दे आर गेसिंग एंड ऑल दैट, और वी प्ले एज अ फैमिली. बट अदरवाइज दिस गेम इज नॉट अ
very big hit with me or my kids. Either they are little or they are still little. I feel that way. It is a little technical game, but हाँ कभी कभी हम खेलते हैं जैसे guess वगैरह खेलते हैं तो like that, but still not that very famous. It takes a lot of time to play also. This is a game which actually my daughter won in one in library competition, but it's a simple cards game. I think there are many cards. You have to just जैसे रम्मी होती थी ना, ये उसका मिनी वर्जन है और ये पिक्चर बेस्ड है. तो एंड इट्स अ कलर बेस्ड कि एवरीवन चूजेस कलर बिफोर कि किसी को ऑरेंज, ब्लू, येलो, और उसके बाद जैसे आप रम्मी खेलते हो कि एक कार्ड फेंका, अगर आपको बेसिकली 4 सेम कलर के कार्ड्स कलेक्ट करने हैं. जिसने पहले कलेक्ट कर लिए दे आर द विनर. सिंपल एज दैट. एक दो पावर कार्ड्स हैं कि आई कैन टेक द कार्ड फॉर द पर्सन, बट काइंड ऑफ रम्मी गेम. सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. सो मी एंड गर्ल्स प्ले दिस गेम अ लॉट, एंड इवन माई बोथ द गर्ल्स प्ले दिस गेम अ लॉट. अब आते हैं नेक्स्ट वाला ड्रॉ पे. ओके, सो this was also a game I got with one of the Globetrotters. We did a Egyptian unit. It used to be, I mean, 2-3 years back I got the country cover करते हैं geography unit. तो they are basically memory cards. मेरे पास पहले भी और मेमोरी कार्ड्स के और गेम्स हैं. तो बेसिकली मेमोरी कार्ड्स हैं, यू पुट अपसाइड डाउन, लाइक ऐसे करके स्प्रेड कर देंगे, फिर 2 खोले, जिसका मैच हुआ दे वन द कार्ड. तो जब बहुत सारे कार्ड्स होते हैं तो माई गर्ल्स गेट रियली ओवरवेल्म्ड और फिर चीटिंग होने लग पड़ती है. फिर 2 बच्चों के बीच खेलना वो लड़ाई हो जाती है. तो व्हेन माई बोथ किड्स आर प्लेइंग दे प्ले दिस मेमोरी गेम बिकॉज इट्स शॉर्ट एंड इट्स ईजी एंड बड़ा दिल पे नहीं लेती, बहुत कंपटीशन नहीं होता. बट अगर वो दोनों मेरे साथ खेल रही होती हैं तो मुझे ऐसी लगता है कि ये बहुत बोरिंग टाइप गेम है. तो हम जो हमारा मेजर वाली ये वाली थी, बहुत दिस इज़ फन मैच गेम फ्रॉम इंडिया, अमेजोन इंडिया, बहुत पहले ली थी. अगेन ये वाली फ्रैंक की थी. तो वी प्ले मैचिंग गेम्स. तो ये मज़ा आता है जब बहुत सारे, माई हस्बैंड इज प्लेइंग, वी प्ले लाइक दैट. उसके बाद आई हमारी ये वाली गेम, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड फेस चेंज रूबिक क्यूब. ओके, तो इस गेम में ये भी हमने कोविड के लिए ली थी. व्हाट यू डू, दे आर ब्लॉक्स विथ ऑफ डिफरेंट कलर, बेसिकली ब्लू, रेड, और 4 ब्लॉक्स हैं और उनके ऊपर सब तरफ पे कोई इमेजेस बनी है. इमेजेस की आँख, नाक, वट एवर इट इज. ठीक है, और हमारे पास कार्ड्स भी वैसे हैं, येलो कलर, रेड कलर, कुछ ब्लू कलर के होंगे और ग्रीन कलर के होंगे. सो हाउ डू यू प्ले इट, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम. इट्स अ वेरी गुड फॉर योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ऑब्जर्वेशन, और बहुत फन गेम होती है. और दिस आई कैन प्ले अलोन विथ माई चाइल्ड. तो मेरी बड़ी वाली इस गेम में ज़्यादा नहीं इंटरेस्टेड है, पर मेरी छोटी वाली बहुत उससे खेलती है. तो आई कैन टेल यू कि 5-6 year old हु आर लाइक जिन्हें जैसे काइनेस्थेटिक लर्नर यू कैन से, जिन्हें बहुत जल्दी खेलना अच्छा लगता है, जल्दी गेम खत्म हो, जल्दी विन हो जाए, जल्दी लूज हो जाए, बहुत पेशेंस नाउ, इट्स परफेक्ट फॉर देम. तो जैसे आप इसमें क्या करोगे, आप कोई कलर चूज कर लो. आई मीन लाइक इन ईच टाइम यू कैन चूज अ कलर. आई चूज अ रेड कलर, और हमें स्टैक बना के रखे होंगे. मैंने रेड का अलग स्टैक, येलो का स्टैक. आई पिक रेड कार्ड फॉर मी एंड देन माई गर्ल विल चूज मे बी a yellow card for her. Okay, and then we will, तो ये मेरा कार्ड है, ये एक मेरा एक मेरी डॉटर का है. तो इट कैन बी डिफरेंट इमेजेस एंड ऑल, एंड देन वी विल, तो बेसिकली 4 people कैन गो प्ले विद इट. सो इफ माई डॉटर विल पिक अप these 4 yellow cubes and I will pick up the red 4 cubes, and then we have to make this image. तो इसमें से जैसे ये है, इसके सब तरफ अलग अलग पिक्चर्स हैं, राइट. सो यू हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड मेक दिस पिक्चर I mean on the table, and the one who makes the first the picture which is given, if मुझे रेड आया है तो अगर मैं ये वाली पहले बना लेती हूँ अपने 4 ब्लॉक से, आई एम द विनर. इफ माई डॉटर मेक्स इट, शी इज द विनर एंड शी अर्न्स दिस कार्ड. तो बेसिकली इट्स लाइक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. जल्दी कार्ड आया, ब्लॉक्स लिए, बनाया. अगर आपने गलत इमेज बना ली, एक आंख खुली रहेगी, एक आंख बंद हो गई, या दांत ये हैप्पी है या सैड है, और किसी में एक ही दांत है, किसी में 2 दांत है. It is such a adrenaline rush game and such fast, and I mean we love it, we really love it. So it's, again, ये भी मेरी AliExpress से है, but इसकी collection is called face change Rubik's cube. तो जैसे इन्होंने बताया है कि you have to make this image दी है, उससे ब्लॉक से आपको ये इमेज बनानी है. So it's very much, you can say, strategy, a spatial understanding, observation, and again for someone who doesn't have much patience to play games, it's like
fastest finger fast. So me and my younger one really love it, really love it. और कोई कंपल्शन नहीं होती है कि ना सारे कार्ड्स खत्म करने हैं, जब तक मन करता है खेलते हैं, बेड टाइम हो गया है तो क्लोज करो. देयर इज नो कंप्लीशन ऑफ द गेम, यू नो, बिकॉज यू गेट रिजल्ट वेरी फास्ट. उसके बाद जो गेम जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई थी, स्पॉटेड, इट इज़ लाइक स्टिल फेवरेट ऑफ माइन एंड माई यंगर वन, क्योंकि मेरी बड़ी वाली हैज़ आउटग्रोन इट. शी वॉज वेरी गुड एट इट बट शी हैज़ आउटग्रोन इट नाउ. सो my little one who is just picking up, so she is now champ in it, and now she wants to compete with me. So it's again the same logic. At a time I'll put 2 cards below, and in each of the cards, each of the pair of cards, there is one picture matchup. So I put these 2 on the floor, and the one who finds out the first, like in which it is in this one, which 2 are like cats. So the one who say cat will earn a card. Like that. So it's again observation, mental strategy and alertness game, which again वही है कि एकदम इसका रिजल्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस गेम को खेलने में. तो माई लिटिल वन लव्स इट, एंड या इट्स अ गुड टाइम पास. मुझे भी पता है 10 मिनट में गेम खत्म हो जाएगी, सो आई कैन प्ले इट. उसके बाद जो अभी भी मेरी लिटिल वन के साथ फेमस है, सबको पसंद है ये ऊनो. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, बट इट्स लाइक बहुत बुरी हालत हो चुकी है इसके कार्ड्स की, फट भी चुके हैं. बट मी एंड इंसानी ऑल्सो जॉइन्स एट टाइम्स. बट हाँ, दिस इज लाइक यू कैन से फैमिली गेम. इवन देयर फादर हु इज नॉट इन अ वेरी गुड मूड टू प्ले और ही इज वेरी टायर्ड, तो उनो में बहुत दिमाग नहीं लगता है, यू नो, एंड ज़्यादा बोलना भी नहीं पड़ता है. तो वी लव प्लेइंग दिस गेम्स विद आवर किड्स व्हेन यू आर रियली टायर्ड, एंड माई बोथ किड्स प्ले विद ईच अदर, सो दैट इज ओके. उसके बाद ये अगेन इट्स अ थ्रिफ्ट स्टोर गेम, सो आई डोंट नो आई टू शो यू और नॉट, बट क्योंकि मेरे पास अब इसका कुछ भी नहीं बचा है. आई बॉट इट लाइक 3 to 4 years बैक, और ये हम जैसे पत्ते पे पत्ता नहीं खेलते थे ताश में, सेम गेम है, पर इसमें बहुत इसमें इमेजेस हैं, व्हेन यू कैन मैच द हार्ट्स और नंबर्स और इवन पिक्चर्स भी हैं. बट कॉन्सेप्ट वही है कि यू नो लाइक एवरीवन गेट्स वन स्टैक. दिस इज माई दिस लाइक आई कैन नॉट सी द कार्ड, बट मैं एक एक पत्ता फेंकती चलूँगी. जिसका भी देन हु मैचेस द फर्स्ट से स्क्वैट, इट्स कॉल्ड स्क्वैट. जो इसका बॉक्स था उसका नाम था, उस पर स्क्वैट लिखा हुआ था, सो माई गर्ल्स रिमेंबर इट. सो स्क्वैट, एंड देन द वन हु सेड स्क्वैट फर्स्ट विल अर्न दैट कार्ड. बट ये बहुत लंबी गेम है भाई, क्योंकि इसमें होता है कि जब आपका मैच कर जाता है तो इट्स नॉट यू अर्न इट, इट गोज बिलो योर स्टैक. दैट वॉज रिटन इन द रूल्स. सो मैं खेलती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई, मतलब विल नॉट पुट द कार्ड्स बैक बिकॉज इट्स गेट्स रियली लॉन्ग. क्योंकि यू नो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, दैट टाइम इट्स अ वेरी सक्सेसफुल बिकॉज इट वॉज वेरी गुड फॉर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू नो, ढूंढना कि क्या मैच किया, नंबर मैच किया, शेप मैच करी या कलर मैच किया. कभी कभी हम अकेले ही खेलते थे कि ना सिर्फ हम कलर्स मैच करेंगे. व्हेन माय गर्ल्स वर लाइक 3-4, तब बहुत छोटी थी, तब से ही मेरे पास गेम है. और अभी हम बोलते हैं कि चलो कुछ भी मैच करो, तो भाई ख़त्म नहीं होती ये गेम. सो आई डोंट लाइक इट मच, बट माई बिकॉज इट्स अ गेम दैट थ्रिल, राइट, स्क्वैट, लाइक हु सेड स्क्वैट फर्स्ट. सो वो जो थ्रिल एलिमेंट है ना इन गेम्स में, वो आप शायद नॉर्मल कार्ड से पत्ते पे पत्ता खेलो वो भी आएगा, बट बिकॉज यू नो बच्चों की गेम है, दे हैव दिस वन, सो दे लव इट. I get really bored with it, so yeah, but it's a good game. Now this one is God, I don't know how you say it, Chebirinth, I don't know how you say it. So this also I got from AliExpress. I saw on YouTube कैसे खेलते हैं. It is you know हमने वो puzzles करी हैं कि you know you make a track. जैसे I'll show you if you can, like इस तरह के इसमें tunnels हैं, you see. So बेसिकली इट्स अ थिंकिंग गेम कि ये कार्ड्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं. यू मेक अ 4x4 मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्ड्स, और आई थिंक 5x5 मैट्रिक्स, और आपको एक टॉप होता है और एक एंड होता है. तो बेसिकली देयर इज अ ओनर एंड देयर इज a cat. You have to, the cat has to go to the owner to grab the food, something like that. And if you make the cat reach the owner, then you earn that cat to yourself. और हर उस cat पे एक नंबर है, जैसे ये cat लगी है, so your goal is to get as many cats as possible, but then you have to make the routes. So you take turns and you can twist it, you know, to make कि so you can say कि ये मेरी छोटे की बस की बात नहीं है. It's a very lot of thinking, lot of strategy, lot of visualization कि अगर मैं इस कार्ड को ऐसे ट्विस्ट करती हूँ, और मैं लाइक एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 5 इस कॉर्नर को मैं ऐसे ट्विस्ट करती हूँ, इस कॉर्नर को मैं ऐसे ट्विस्ट करती हूँ, तो मेरा रूट बन जाएगा कैट के लिए. सो यू कैन इमेजिन, ये बहुत थिंकिंग गेम है. आई प्ले विद माई एल्डर वन, शी लव्स इट, बट अगेन इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग गेम, और कभी कभी ना एंड नहीं होता और तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है. बट या दिस आई बॉट बेसिकली फॉर माई एल्डर वन बिकॉज शी लव स्ट्रैटेजी एंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग गेम्स.
एंड शी हैज़ पेशेंस. मेरी छोटी वाली ने एक बार देखा मेरे को खेलते हैं, उसको बहुत बोरिंग लगे कि नो आई कांट प्ले दिस, बट दिस इज you watch on YouTube कैसे खेलते हैं, but it's a very interesting game if your child has patience and if your child likes strategy and building kind of things. My girl loves building the routes and tracks, so this is what it is. It's a very small short game. शायद के बड़े versions भी होंगे, but I got a card version because I don't have much space in the house. उसके बाद ये हमारी नई है, this is called Sleeping Queens. It is also very interesting game. बट अगेन मेरी छोटी वाली के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है या सोचना पड़ता है, तो शी प्लेज विद अस बट नॉट लाइक शी गो एंड पिक इट अप. बट माई एल्डर वन अगेन शी लव्स इट बिकॉज इट्स अगेन मेमोरी गेम. जैसे अगर रैट-अटैक टाइप छोटे वर्जन की मेमोरी है, ये बड़े वर्जन की मेमोरी है. यू टू रिमेंबर कौन सा कार्ड कहाँ पे था, बहुत सारे रूल्स हैं. इवन और अगेन आई ऑर्डर्ड चाइनीज वर्जन, सो इन द सेंस I don't know, your Chinese version will get cheaper. So इसमें इंस्ट्रक्शंस देखो, इधर चाइनीज में होती है और इधर इंग्लिश में होती है. इट्स नॉट अ बिग डील. और एनीवेज मुझे यूट्यूब देखना पड़ता है समझने कि ये गेम खेलनी कैसे है. बट दिस इज अगेन यू हैव टू तो इट हैज़ ऑल्सो हैड कार्ड्स लाइक इसमें क्वींस हैं, तो हैव टू रिमेंबर किस क्वीन के कितने पॉइंट होते हैं. और ना अपसाइड डाउन रखते हैं कार्ड्स, इफ यू सी द इंस्ट्रक्शंस राइट, इसमें कार्ड्स अपसाइड डाउन रखते हैं. तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर कौन सी क्वीन कहाँ पे रखी थी, किस क्वीन के ज़्यादा पॉइंट्स हैं. अगर ये क्वीन उठेगी तो वो क्वीन भी उठेगी. स्लीपिंग क्वींस हैं बेसिकली. सो दीज क्वींस आर स्लीपिंग बिकॉज दे आर अपसाइड डाउन, एंड देन यू टू वेक the queens up, and if you wake the queens up then you earn them, and the end who earns the most queens, because each queen has a point. और ऐसे ऐसे cards भी हैं. So it's a lot of strategy, thinking, memorization game which works with my elder one but not my younger one. So that we decided it's a very very interesting game, and but rules बहुत सारे याद रखने पड़ते हैं भाई. I still refer to them again and again क्योंकि मुझे याद नहीं रहते. और उसमें बहुत सारी sleeping potion है. Again my girl loves Harry Potter, so maybe that is the reason she really likes it, because इसमें potion है, magic wands हैं, dragons हैं, warriors हैं. So if your child is in that kind of mode, they would really love it. और but it's like it's a royally losing card game, to go that way. So again it has lot of rules, so बच्चा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या थोड़ी उसमें पेशेंस होनी चाहिए खेलने के लिए. तो उसके बाद हमारे पास ये दो गेम्स हैं जो एक्चुअली सिंगापुर बेस्ड गेम्स हैं. सो आई एम नॉट श्योर यू कैन हैव इट, बट इट्स कॉल्ड चोप एंड दिस कॉल्ड कोपी किंग. सो इन सिंगापुर द कॉफी एंड द टी इज कॉल्ड tea is called kopi. So it is like it is for मनी गेम, अंडरस्टैंडिंग द मनी एंड काउंटिंग द मनी. एंड इसमें अब जैसे कोई कॉफ़ी बनती है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. तो सिंगापुर में बहुत सारे वर्जन्स ऑफ कोपीज, कॉफ़ी एंड टेस्ट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट स्टिल नो. तो इसमें क्या है कि आपके पास इट्स लाइक आई विल टेल यू हाउ इट इज प्लेड. सो अगर आपको ये मिलता जुलता वर्जन इंडिया में मिले या इफ यू गेट इट, इट्स आई जस्ट एक्सप्लेन टू. इट्स वेरी वेरी फन गेम. इट कैन बी, इट्स वेरी क्विक टू लर्न, वेरी इजी, और मज़ा आता है. तो जैसे आपने हर एक, इन्होंने बहुत सारी जो सिंगापुर की फेमस ड्रिंक्स हैं यहाँ पे, जैसे हॉकर सेंटर में बहुत सारी ड्रिंक्स मिलती हैं. इन द सेंस टी को ही 4 तरीके से बनाते हैं या कॉफ़ी को ही 4 तरीके से बनाते हैं. सो माइलो यहाँ पे पीते हैं. सो लाइक इफ़ यू हैव दिस कार्ड यू सी द इंग्रेडिएंट्स इट हैज़ राइट. तो आपको, और उसके बाद क्या होता है, पत्ते पे पत्ता खेलते हैं ना, वो चादर बिछा देते हैं. तो जो इंग्रेडिएंट वाले कार्ड्स हैं, जैसे ये इंग्रेडिएंट्स कार्ड, जैसे इसमें शुगर है, ये सब हम फैला देंगे फ्लोर पे. फिर आपको एक एक करके, अगर आपने विड्रॉ किया, अगर वो आपके इंग्रेडिएंट है, यू कीप इट विद यू एंड देन फ्रॉम द शीट. सो अदरवाइज आपने नहीं उठाया तो यू टू टर्न इट बैक. इस तरह से हम अपनी चाय के इंग्रेडिएंट्स या जो भी आपके ड्रिंक है उसके इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करते हैं. इन द एंड देयर इज मनी. So it's again a strategy game कि अगर, and you can choose what drink you want to make. So if you take a cheaper drink, you can make it very fast, but it is cheaper. So in the end, you are a shopkeeper, so you earn less money. But if you take a expensive card, which is like $3.50, you have to make it like 4 ingredients you have to put. But in the end, you will be the winner because you have more money as a shopkeeper, so it is also a lot of patience, but still again क्योंकि आप एक एक ड्रिंक को एकदम बनाते हो और फिर वो कार्ड आ जाता है, फिर नेक्स्ट कार्ड आता है, फिर वो ड्रिंक बनानी है, जैसे जल्दी ऑर्डर ले रहे हो, तो दैट वे इट स्टिल वर्क्स. अगेन आउटकम बहुत जल्दी आ जाता है इस गेम में, बहुत सोचना नहीं पड़ता. और वही पत्ते पे पत्ता टाइप से, खोला, आया तुम्हारा कार्ड, ले लिया, नहीं आया तो वापस रख दो. थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों को, बट देन दे लर्न टू कि मेरा पत्ता नहीं निकल रहा है. और दूसरी बात, आपको याद भी रखना पड़ता है कि अगर उसने ये पत्ता खोला था, मुझे चाहिए, तो मैं अगली बार भी वो पत्ता खोलूंगी, या उसने कब माइलो था, वो माइलो कहाँ जैसा था. सो दैट वे याद भी रखना पड़ता है. सो बट इट इज़ वेरी सक्सेसफुल विद माई लिटिल वन हु इज़ अ काइनेस्थेटिक लर्नर हु डजंट हैव much patience, but yeah,
she likes it, and both the girls play with each other. So you know, it is 2 player, it's an interesting game. फिर ये हमारी लास्ट वाली है चोप. सो अगेन यहाँ पे अब सिंगापुर में रहते हैं, यहाँ पे हॉकर सेंटर में टेबल्स होते हैं. सो हाउ यू ब्लॉक अ टेबल. वहाँ पे सेल्फ सर्व, जैसे हॉकर सेंटर होगा सेल्फ सर्विंग रेस्टोरेंट्स होंगे या कॉर्नर्स होंगे. सो यू पुट अ टिश्यू पैकेट ऑन योर टेबल एंड देन यू से इट्स माई टेबल, यू नो. तो इसमें उस हिसाब से जो सिंगापुर में दे कैन रिलेट टू इट कि जैसे इसमें टेबल्स हैं, यू नो. सो हाउ यू ब्लॉक अ टेबल, एंड दिस इज जो टिश्यू बॉक्सेस हैं. सो दिस इज अ पैकेट ऑफ, वो कार्ड्स भी हैं जिनमें टिश्यूज बने हैं. सो यू ब्लॉक अ टेबल. सो फर्स्ट कि इट इज़ अगेन वेरी रियल लाइफ गेम कि जब हम जाते हैं हॉकर सेंटर में तो क्या करते हैं, पहले जाके हम टेबल ब्लॉक करते हैं. सो फर्स्ट यू पुट अ टिश्यू देयर. उसके बाद आप उस जो भी आपको खाना है, आप चाइनीज़ कोरियन, हॉकर सेंटर में बहुत सारी होती हैं. तो वेयर डू यू गो. फिर हम जैसे मुझे ये डिश बनानी है, ठीक है, तो ये डिश बनानी है तो मैं, पर वहाँ पे क्या होता है कि ना पक्षी आ जाते हैं. तो हम यू हैव टू वेरी केयरफुल कि तुम खाना टेबल पे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर पक्षी आ जाएगा तो वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं अराउंड. तो यू नो ऑल दो रियल एलिमेंट्स ऑफ फूड और ऑफ आउटिंग जो कोविड में नहीं होती है, बट ऑल दैट इज कवर्ड इन दिस गेम. इज अ वेरी फेमस चाइनीज गेम. फिर कोई हवा आ गई तो यू नो चोप, या कि इट्स लाइक हम डिफरेंट खाना खाते हैं. फिर तुमने कितना खाना खाया, तुमने कौन सी डिश ऑर्डर करी, कितने लगे, तुम उसको खा पाए. सो यू नो इट्स बेसिकली अ रियल लाइफ गेम, बट इट इज़ नॉट फन इफ यू हैव ओनली 2 players. दैट इज़ अ ड्रॉबैक, क्योंकि एक बंदे को काइंड ऑफ यू कैन से जज बनना पड़ता है, जो यू नो जो बोलेगा कि इफ लाइक आई एम प्लेइंग, 3 बंदे खेल रहे हैं, बट हर एक को, जैसे मेरी टर्न आई है तो मैं मेरी टर्न है तो मेरे पे पक्षी नहीं बैठ सकता because I'm sitting on my table. You know, all those concepts are there. So it's not very successful with if only you have 2 kids, or if you have a single child, you need 3 minimum players to play this game. तो ये हम खेलते हैं, और ऊपर से लंबी गेम है, बहुत लंबी गेम है. तो ये हम खेलते हैं जब मेरे पास सच में बहुत टाइम होता है और मेरे बच्चे आपस में नहीं खेल सकते. सो इट इज़ नॉट प्लेड दैट मच, बट हाँ रेस्ट ऑफ देम. और ये जो गेम है थिंकलिंक, I've showed it before also. It is from Amazon India. It is a very good thinking, logical, making connections, and a storytelling game. A long game, and yeah, I have a now I have a love and hate kind of relationship because I have so many more options which I can play without mental stress. It adds a lot of mental stress to me because I had to really think a lot. So but it's a good game कि इसमें आपको different चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि एक बैग हो गया, आपको एक फायर हो गई, और आपको कोई चीज़ हो गया, आपका बैट हो गया, ठीक है. अब आपको चैलेंज दिया जाता है, काइंड ऑफ यू पिक अप अ कार्ड. ये आपके थिंकलिंग है कि अब आपको चैलेंज दिया जाता है कि यू हैव टू, एवरीथिंग इज ब्लोइंग अवे, okay, that is your challenge. So if you have 3 things, what can you do? So then I have to make a story with either 1 or 2 or 3 cards ki if I do this thing, if everything is blowing away, maybe I can take a bat and put a hole on the ground and hold myself tight so that I don't blow away. So this is a story you have to make logically, and if the other player understands your story or accepts your story, then you win this card, you solve this problem. So that way it's a lot good, very very good game, but again needs a lot of patience. और कोविड में मेरी पेशेंस काफ़ी कम हो गई है honestly of playing and you know whatever it is. So yeah, so this is the whole box of games I have, and I know it's a very long video, but I just wanted to share what all we are doing nowadays and hope you can get ideas from it. So thank you so much for watching, and see you later. Bye bye.